کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کے ٹرانسپورٹ سیکٹر کھولنے کے حکم کے باوجود شہر کے بڑے بس اڈے تاحال بند پڑے ہیں۔ لاری اڈا انتظامیہ اور آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ آنرز ایسوسی ایشن کے مابین ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ جی ہاں، ٹرانسپورٹرز نے لاری اڈے کے نان آپریشنل ہونے کا سارا ملبہ ایڈمنسٹریٹر پر ڈال دیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز اور سرکار کے مابین ڈیڈ لاک سے شہر کے مرکزی لاری اڈے میں سناٹے چھا چکی ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ہمارے تحفظات کو دور کیا جائے تو ٹرانسپورٹ کو آپریشنل کر دیا جائے گا۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال تو بحال ہو چکی ہے، لیکن اب ٹرانسپورٹرز ہڑتال پر جا چکے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے لاری اڈوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم ہوں گے اس کے بعد ہی ٹرانسپورٹ کو بحال کیا جائے گا۔ انارکلی بازار میں تاجر رہنما نئی میر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں پر رش بہت زیادہ ہو گیا ہے اور لوگ ایس او پیز کی جو ہے وہ اپنا اس پر عملداری نہیں کر رہے۔ آج ہماری دکانوں پر بھی ایس او پیز کی عملداری ہو رہی ہے اور آج ہم نے اپنے گاہکوں کو اور عام پبلک کو بھی اویئرنیس دی ہے کہ ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں، ماسک پہنیں، مارکیٹوں کے اندر بچوں کو نہ لے کے آئیں، خواتین جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں مارکیٹوں میں نہ آئیں۔ تو ہم تو اپنی یہ قومی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں الحمدللہ، اور تاجر برادری جو ہے اس صف پر اس محاذ پر جو ہے صف اول کے اپنا جو سولجر کی حیثیت سے کام کر رہی ہے۔ لیکن افسوسناک بات ہے وہ یہ کہ حکومت جو ہے وہ ہمارے کسی دکھ اور درد کو بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پورے ملک کے شاپنگ مالز کو کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی جو چھٹی اس حکومت نے کی تھی اس چھٹی کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ خوش آئین ہے، یہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، یہ فیصلہ پاکستان کے جو 36 لاکھ سے زائد تاجر ہیں ان کے دل کی آواز تھی، اور اسی فیصلے کے ذریعے معیشت چلے گی، اکانومی چلے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا اور عام آدمی کو، عام عوام الناس کو اپنی عید کی شاپنگ کے حوالے سے، خریداری کرنے کے حوالے سے سہولت ملے گی۔ اور جب محدود ایام نہیں ہوں گے تو یہی ہمارا موقف تھا کہ کرونا بھی نہیں پھیلے گا، لوگ جو ہیں وہ آسانی سے اپنی شاپنگ کر سکیں گے۔ ہمیں آج معلوم پڑا ہے کہ شاپنگ مالز کو 24 گھنٹے کھولنے کا اعلان کیا ہے حکومت پنجاب نے۔ ہمیں بہت افسوس ہوا کہ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جو مارکیٹیں ہیں وہ 5 بجے شام تک کھلی رہیں گی۔ اگر شاپنگ مالز 24 گھنٹے کھلیں گے تو پھر مارکیٹیں بھی 24 گھنٹے کھلیں گی، پھر مارکیٹیں بھی شام 5 بجے بند نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پر وہ مارکیٹیں جو ریٹیل مارکیٹیں ہیں اور جہاں پر جو ہے وہ ایک دم رش جو ہے وہ امڑ آتا ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ کیا آپ جو حکمران ہیں، کیا آپ ہم تاجروں کو کرونا زدہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ہمیں کرونا کی بیماری میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا یہ منصوبہ ہے یا آپ نے ہم سے کوئی بدلہ لینا ہے جو آپ ہمیں شام 5 بجے کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹیں بند کر دیں اور رش ہو جائے، اور میرا تاجر اور اگر میرا دکاندار کسی کو کرونا ہوا تو میں آپ کو بتا دوں اس کا ہم پرچہ حکومت پنجاب پر کٹوائیں گے، ہم حکومت پنجاب کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے، کیونکہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ہم بار بار میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ 5 بجے تک شام کو جو شاپنگ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، رش ختم نہیں ہو سکتا، اور ہم آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں، ہم آپ کو آنے والے وقت کی بات بتا رہے ہیں کہ کرونا پھیل جائے گا۔ تاجر رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ نئی میر کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت نے جمعے اور ہفتے کی چھٹی بھی ختم کی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شاپنگ مالز کو کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے نئی میر نے اس فیصلے کو خوشائند قرار دے دیا ہے۔ ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی بارہا حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہفتہ، اتوار اور جمعے کے روز بھی کاروبار کو کھولنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر شاپنگ مالز ہفتہ اور اتوار کو کھلیں گے تو پھر مارکیٹس اور دکانیں بھی ہفتہ اور اتوار کو کھلی رکھی جائیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5 بجے تک مارکیٹس کھولنے کا یہ جو ٹائم پیریڈ مقرر کیا گیا ہے اس کو بھی بڑھایا جائے، اور ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ اگر کسی بھی تاجر کو یا دکاندار کو کرونا وائرس ہوا تو اس کا پرچہ حکومت پنجاب کے خلاف وہ کٹوائیں گے۔ سپریم کورٹ نے شاپنگ مالز کو کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی حوالے سے تاجر رہنما نئی میر بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔
उनकी जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को खुशाइंद करार देते हैं। अदालत ने जुमे और हफ्ते की छुट्टी भी खत्म कर दी है, लिहाजा अब अगर शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे तो हम भी मार्केट्स और दुकानें हफ्ता और इतवार को भी खोलेंगे। जी हाँ, 24 घंटे शॉपिंग मॉल्स खोलें तो ही मार्केटों में रश कम होगा। नईम मीर की जानिब से वाज़ेह बताया जा रहा है कि हुक्मरानों का मंसूबा ताजिरों को कोरोना का शिकार करना है। अदालत ने जुम्मा और हफ्ते की छुट्टी भी खत्म कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शॉपिंग मॉल्स को खोलने का ऐलान किया है। कम वक्त में ज्यादा कोई ताजिर कोरोना का शिकार हुआ तो मुकदमा भी हुकूमत के खिलाफ दर्ज करवा देंगे। नईम मीर की जानिब से वाज़ेह ये बता दिया गया है। जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ हसन चौहान कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला जल्द हल कर देंगे। कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला ट्रांसपोर्टर्स से दोबारा बात करके ही हल किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत हर शोबे को रिलीफ फराहम करना चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ हसन चौहान का इस हवाले से मजीद कहना था कि SOPs मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स के अपने मफाद में है। उनका कहना है कि मैं यकीन दहानी करवाता हूँ कि ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात को जल्द अज जल्द ख़त्म करवा दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स के साथ एक बार फिर मुज़ाकरात किए जाएंगे और तमाम मुतालिबात हैं उन पर बातचीत की जाएगी और मुतालिबात को तस्लीम भी कर लिया जाएगा। ट्रांसपोर्टर से दोबारा बात करेंगे और इसका हल भी निकाला जाएगा। वज़ीर इत्तलात फयाज़ हसन चौहान की जानिब से इस हवाले से यकीन दहानी करवाई गई है। उनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत हर शोबे को रिलीफ फराहम करना चाहती है। ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी एक बार फिर मुज़ाकरात किए जाएंगे और उनके जायज़ मुतालिबात को तस्लीम भी कर लिया जाएगा। उनकी जानिब से कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट को बहाल करवाने के हवाले से वो किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल, वज़ीर इत्तलात फयाज़ हसन चौहान की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल होने की यकीन दहानी। कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला ट्रांसपोर्टर से दोबारा बात करके हल कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दिया जाएगा। हुकूमत हर शोबे को रिलीफ फराहम करना चाहती है और ट्रांसपोर्टर्स को भी रिलीफ फराहम कर रहे हैं और करेंगे। फयाज़ हसन चौहान की जानिब से ये बताया गया है, जबकि ये भी कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा भी लिया जाएगा। उधर कोरोना वायरस की वजह से मज़ाराती औलिया कराम की बंदिश, महकमा औक़ाफ़ और मजहबी पंजाब को 26 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। महकमा औक़ाफ़ ने मज़ारात को खोलने के लिए पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त भिजवाने का फैसला कर लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सिटी 42 शाहिद सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, बताएगा मज़ारात को किस तरह से खोला जा सकेगा? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से महकमा औक़ाफ़ व मजहबी अमूर पंजाब के तमाम मज़ारात को ताहुक्म सानी बंद किया गया था, लेकिन अब चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जो लॉकडाउन है उसमें नरमी की जा रही है, जिसके बाद और महकमा औक़ाफ़ व मजहबी अमूर की जानिब से भी फैसला किया गया है कि होम डिपार्टमेंट को एक मरासला अरसाल किया जाए और उसमें उनसे इजाज़त मांगी जाए कि मज़ारात को भी खोलने का कोई फ़ैसला किया जाए। चूँकि मज़ारात की बंदिश की वजह से महकमा औक़ाफ़ व मजहबी अमूर को तकरीबन 26 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। आज तवक्को की जा रही है कि महकमा औक़ाफ़ व मजहबी अमूर पंजाब की जानिब से ये मरासला जो है वो होम डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा और होम डिपार्टमेंट के बाद चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी से हतमी फैसला जो है वो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से किया जाएगा। मज़ारात को खोलने के हवाले से ये भी महकमा औक़ाफ़ व मजहबी अमूर की जानिब से कहा जाएगा कि कौन सी SOP जो है महकमा हेल्थ की जानिब से उनको बताई जाती हैं और जो एहतियाती तदाबीर महकमा हेल्थ की जानिब से उनको या पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बताई जाएंगी उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा और उसके साथ साथ ज़ायरीन को वहाँ पर सलाम करने और फातिहा खानी करने की इजाज़त दी जाएगी। पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त भिजवाने का फैसला कर लिया गया। लाहौर में डीजल का बहरान पैदा हो गया है। शहर में डीजल की रोजाना की तलब 7 लाख से 1 मिलियन लीटर रोजाना है। जनरल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ख्वाजा मोहम्मद आतिफ की सिटी 42 से गुफ्तगू। कहते हैं रोजाना की बुनियाद पर शहर में 1 से 1.5 लाख लीटर सप्लाई आ रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। हुकूमत ने अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी इजाज़त दे दी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अब सड़कों पर रवां दवा है। जैसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर रवां दवा हुई है तो शहर के अंदर डीजल की किल्लत ने सर उठाना शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा मोहम्मद आतिफ इस हवाले से कहते हैं कि शहर में रोज़ाना डीजल की जो खपत है वो 7 लाख लीटर है और शहर में इस वक्त जो डीजल की सप्लाई है वो 1 से 1.5 लाख लीटर के दरमियान आ रही है। इस वक्त हमारे साथ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा आतिफ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। ख्वाजा साहब,
बताइएगा डीज़ल की रिक्वायरमेंट कितनी है और इस वक्त कितनी सप्लाई आ रही है। हम देख रहे हैं गवर्नमेंट ने अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की भी परमिशन दे दी है, तो रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगी, कितनी सप्लाई आ रही है? जी देखिए, इस वक्त आपने बड़े बर्निंग इशू को टच किया है। जो डीलर्स हैं वो तो ऑलरेडी कोरोना के हाथों जो हैं वो क्रश हुए हैं बिल्कुल, और हमारी इस वक्त टोटल 20 से 30% सेल ऑलरेडी रह गई हुई है। और पहले तो शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। आज से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को काम की इजाजत, किरायों में 15 से 20% तक कमी का ऐलान कर दिया गया। सवारियों की तादाद में 50% की शर्त पर ट्रांसपोर्टर्स को तहफुजात हैं, जबकि ट्रांसपोर्टर्स का गाड़ियां चलाने से इनकार। शहर के बड़े बस अड्डे वैरानी का मंजर पेश करने लगे। तफसीलात जानेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान, बताएगा आखिर ये मामलात कब हल होंगे? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने के अहकामात तो जारी कर दिए गए थे, लेकिन SOPs पे अमल दरामद और निस्फ मुसाफरों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने के अहकामात पे ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक पैदा हो गया। और अभी तक ट्रांसपोर्टर्स ने शहर के तमाम लारी अड्डों से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चलाई है और ट्रांसपोर्ट के तमाम अड्डे जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पे ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन इस्मतुल्लाह न्याजी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। न्याजी साहब, ये बताइएगा कि क्यों आपने ट्रांसपोर्ट जो है ये नहीं चलाई, और हुकूमत की जानिब से तो ऐलान कर दिया गया लेकिन तमाम अड्डे बंद पड़े हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, हमने तो रिहर्सल भी कर ली थी और बिल्कुल तैयार थे। हमारा अपना ये था कि हम तो दिलों को जोड़ने वाले लोग हैं, एक शहर से दूसरे जो लोग हैं प्यारों को हम मिलाने वाले लोग हैं, हम तोड़ने वालों में से नहीं है। हुकूमत ने जो SOPs है उसमें थोड़ा सा जो है हमारा इख्तलाफ है, जो हमें कहा गया वो नहीं था। देखिए, आधी गाड़ी और किराया भी कम करके तो ये कैसे मुमकिन था कि हम गाड़ी को रोड पर ला सकते या चला सकते, तो इसलिए बहुत मुश्किल था। इसलिए हमने हुकूमत से जो मुतालबा किया कि ये जो है SOPs पे नज़रसानी करके इसको दोबारा से जो है किया जाए, मगर हुकूमत जो है इस पे अभी कोई सिंसियर नज़र नहीं आ रही मुझे। जी बहुत शुक्रिया। इस्मतुल्लाह न्याजी बात कर रहे थे, उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से आधी सवारियों के साथ जो है वो इंटरसिटी रूट्स पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का हुक्म दिया गया है। इनका कहना है कि इनके लिए आधी सवारियों के साथ गाड़ियां चला के अखराजात पूरे करना और फ्यूल की कास्ट पूरी करना जो है मुहाल हो गया है, जिसकी वजह से इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बदस्तूर बंद रखने का फैसला किया है। अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने के अहकामात जारी करते हुए फयाजुल हसन चौहान इस हवाले से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। बुज़दार हुकूमत इस सिलसिले में SOPs को आज हतमी शक्ल दे देगी। तमाम मार्केट, शॉपिंग मॉल्स अदालती अहकामात और SOPs की पाबंदी के साथ खोले जाएंगे। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं अवाम को रिलीफ देने और मईशत को चलाने के लिए हुकूमत और अदलिया एक पेज पर है। फयाजुल हसन चौहान सूबाई वज़ीर इत्तलात की जानिब से ये बयान सामने आया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने के अहकामात सादिर किए हैं। हुकूमत ने ईद की शॉपिंग के लिए तमाम शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन SOPs पर अमल दरामद करना भी लाजमी करार दिया जा रहा है। जी हाँ, ईद पर शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत तो दे दी गई है, मगर SOPs पर अमल दरामद भी यकीनी बनाना होगा। तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम। हुकूमत ने ईद की शॉपिंग के लिए तमाम शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त दे दी है, लेकिन इससे कबल जितने भी शहरी शॉपिंग के लिए आएंगे उन्हें तमाम जो SOPs हैं हुकूमत की जानिब से जो जारी किए गए हैं उन पर अमल दरामद करना पड़ेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पैकेजेस शॉपिंग मॉल में, जहाँ पर यहाँ शॉपिंग के लिए बहुत बड़ी तादाद शहरियों की जो है वो आ रही है और शॉपिंग मॉल इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर SOPs जो हैं उन पर अमल दरामद किया गया है। हुकूमत की जानिब से जारी SOPs के मुताबिक शॉपिंग मॉल में दाखिले से कबल मास्क का इस्तेमाल करना होगा, उससे पहले जो है वो अपना टेम्परेचर चेक करवाना होगा और शहरियों को शॉपिंग के लिए या मॉल में दाखिले से कबल समाजी दूरी जो है वो उसको भी इख्तियार करना होगा। इसलिए जितने भी पैकेजेस मॉल की इंतज़ामिया है उन्होंने तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल किए हैं। इस पर शॉपिंग मॉल में दाखिले से कबल उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, हाथों को सैनिटाइज़ किया जाता है। इसके साथ साथ मास्क के दाखिले के बगैर किसी भी शहरी को शॉपिंग मॉल में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। अगर किसी शहरी के पास जो मास्क या सैनिटाइज़र नहीं है तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ कंपनियों की जानिब से मॉल्स के बाहर और अंदर स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ से शहरी जो हैं मास्क और सैनिटाइज़र ख़रीद सकते हैं, उसके बाद वो दाखिल हो सकते हैं। और शॉपिंग के लिए भी तमाम शॉपिंग मॉल के अंदर जितनी भी दुकानें हैं उनसे कबल समाजी दूरी के लिए निशानात लगाए गए हैं, जहाँ पर शहरी जो है वो खड़े होकर इंतज़ार। वसीम बहुत शुक्रिया।
कोरोना वायरस के बाद रवां साल ईद पर स्टेट बैंक की जानिब से बैंकों को तो नए नोटों की फराहमी ना हो सकी, लेकिन स्टेट बैंक की इमारत के बाहर नए करेंसी नोटों की ब्लैक में धड़ल्ले से सेल जारी है। बिल्कुल, ब्लैक में धड़ल्ले से सेल का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं, मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं। स्टेट बैंक तो कड़क नोट फराहम ना कर सकी, लेकिन धड़ल्ले से जो है स्टेट बैंक के बाहर नोटों की ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हसन अली से। हसन अली, बताएगा कौन कौन है, क्या पब्लिक इंटरेस्ट ले रही है नोटों में? रवां बरस कोरोना के बायस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हिदायत जारी की थी कि बैंकों से नए नोट जो हैं वो फराहम नहीं किए जाएंगे, जबकि हर साल की तरह इस साल भी स्टेट बैंक की इमारत के साए तले यहाँ पे जो नए करेंसी नोट्स हैं उनकी ब्लैक में फ़रोख्त का सिलसिला जारी, और यहाँ पे शहरी जो हैं वो अपने बच्चों को ईदी देने के लिए नए नोट जो हैं वो ज़ायद पैसे देकर ख़रीद रहे हैं। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो मौजूद हैं। जी बताइएगा कि आपने अभी नोट लिए हैं, क्या कितने इजाफी कितने पैसे दिए आप? तकरीबन 1000 मैंने ज़्यादा दी है। तो अब ये है कि ईद का सीज़न है तो बच्चों को ईदी वगैरह तो देनी है, और बच्चे आपको पता है नए नोट देख के ज़्यादा खुश होते हैं, तो इसलिए अब हमें ब्लैक में भी ये चीज़ें लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए, ये बैंक वाले जो होते हैं इनसे मिले होते हैं और ये अपने आदमियों को सेल कर देते हैं भाई, जो इनके एजेंट हैं, और ये फिर महंगे दामों सेल करके बेचते हैं, फिर मजबूरन हमें भाई से लेने पड़ती हैं ये चीज़ें। तो इनको चाहिए कि ये कंट्रोल करें। मैंने भी आपके सामने अभी लिए, मैं बैंक गया हूँ सुबह के टाइम, तकरीबन सुबह 10 बजे से लेके अभी तक मैं इसी चीज़ में था कि शायद मुझे पैसे मिल जाएं, लेकिन मुझे कहीं से भी नहीं मिले, फिर मुझे मजबूरी यहाँ से आगे लेने पड़े हैं। बहुत शुक्रिया। जैसे कि मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इकदाम करे कि जिससे कम से कम ईद के दिनों में जो नए करेंसी नोट्स हैं उनकी फराहमी आवाम को हो सके, ताकि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के मुलतवी शुदा सप्लीमेंट्री इम्तहानात जून में करवाने का फैसला किया गया है। मेडिकल के इम्तहानात और ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से यकसा पॉलिसी का ऐलान भी किया गया है। पंजाब की मेडिकल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, वाइस चांसलर UHS डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, मेडिकल के तलबा को बगैर इम्तहानात अगली क्लासेस में प्रमोट नहीं किया जा सकता। अगर माँ बाप को और इनको अपना ख्याल है कोरोना का, तो हमें भी है। आज हम भी अपने आप को रिस्क पे लगा के इकट्ठे हुए हैं, यहाँ बैठे हैं। इस वक्त हम भी सफ़र करके आए हैं। ज़फ़र मेरा छोटा भाई है, ये फैसलाबाद से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, तो हम सब भी तो इकट्ठे बैठे हैं। रिस्क तो इस वक्त सांस लेने में भी है, आप जहाँ भी लेंगे, और बचाने वाली ज़ात लेकिन उससे बहुत बड़ी है। तो हम इनको उतना की रिस्क में डालेंगे जितना अपने सके बच्चों को डालेंगे। हम कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हम ज़िंदगी को मफलूज भी नहीं कर सकते। क्या हम कोरोना की वजह से घर के बिस्तर से उतरे ही नहीं? तो मेरी गुजारिश इन बच्चों से ये है कि हम पे एतमाद करें, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का असूल है कि एतमाद के बगैर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। अल्लाह के लिए आज हम सब भूखे हैं, हम टकरें भी मारते हैं ज़मीन पे। मैंने तो अल्लाह को नहीं देखा। एतमाद के तहत ही चल रहा है ये रिश्ता, और बहुत बड़ा रिश्ता मेरे लिए है, सबसे दुनिया का मेरे लिए सबसे बड़ा रिश्ता हम सबका है। तो इसलिए आप भी हम पे एतमाद करें। हम जो भी करेंगे आपकी बेहतरी के लिए करेंगे और आपकी सेफ्टी के साथ करेंगे। तो अगर 4000 के 3000 के हॉल में हम 10 बच्चे बैठाएंगे तो हमें पता कैसे बैठाना है। हम इन इन्विजिलेटर्स का RT-PCR करेंगे, हम उनकी एंटीबॉडी टेस्टिंग करेंगे, यहीं पे करेंगे, इसी यूनिवर्सिटी में करेंगे। मैं खुद इंश्योर करूंगा कि मेरे किसी इन्विजिलेटर को कैरी ना कर रहा हो ये वायरस, कोई हमारा नहीं कर रहा होगा, क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो चुका होगा तब। तो मेरी ये गुजारिश है कि हम चाह रहे हैं कि सप्ली से हम फारग हो जाएं, फारगुल तहसील हो जाएं ये बच्चे, ताकि अगले एनुअल को ये खुदा ना खास्ता जो सप्ली में फेल होते हैं वो अपीयर हो सकें, वरना एक पूरा साल वाइप ऑफ हो जाएगा एकेडमिक ईयर। इसको हम वापस रिवाइव नहीं कर सकते। इन चीज़ों को कर सकते हैं जिसका कह रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ये 2 किस्म की क्लासेस होती हैं। जो अंडर ग्रेजुएट्स की डेफिशिएंसीज़ इन दिनों में है वो ऑनलाइन जो टीचिंग और वर्चुअल ट्रेनिंग है उसके ज़रिए पूरी की जा रही है। इसमें हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शंस हैं, उन पे अमल किया जा रहा है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने गूगल्स क्लासरूम, जूम टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया है, और लेक्चरिंग टेक्निक्स इस वक्त चल रही हैं, इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ चल रहा है, ताकि उनका एकेडमिक्स गैप ना हो, और जो
ان کا کریکولم اس کو انداز میں پورا کیا جائے. جہاں تک پوسٹ گریجویٹ کا تعلق ہے، ماشاءاللہ تمام یونیورسٹی اور کالجز کے پوسٹ گریجویٹ دے آر آن ڈیوٹی اور ان کی کمپیٹنسیز اسی انداز میں لک آفٹر کی جا رہی ہیں. جہاں تک ایگزامینیشن کا ایشوز ہے، اس میں جو یونیورسٹیز ہیں اپنی ایکڈیمک کونسل اور ایکٹ کے مطابق ان کو دیکھ رہی ہیں کہ کس انداز میں وہ ایگزامینیشن کیلنڈر سیٹ کیا جائے. اور جو ایگزامینیشن کیلنڈر سپری کا یا اینول کا سیٹ کیا جا رہا ہے، اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ جو ہماری ڈگری کی جو پریسٹیج ہے وہ اسی انداز میں مینٹین رہے. اسٹوڈنٹس کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. خدا نخواستہ کوئی اسٹوڈنٹ اگر آؤٹ آف کنٹری ہیں اور اگر اب وہ نہیں ان کی ایکسیسیبلٹی، تو موڈیلٹیز آف اسیسمنٹ ایکڈیمک کونسل اور یونیورسٹی رولز کے مطابق ان موڈیلٹیز آف اسیسمنٹ کو ان کو آگے بڑھیں گے. بزدار حکومت کا لاہور کی ترقی پر بھی فوکس ہے. وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا. منصوبے پر مجموعی طور پر 1 ارب 76 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. تعمیراتی لاگت کا تخمینہ 1 ارب 9 کروڑ روپے لگایا گیا ہے. شفاف ٹینڈرنگ سے تعمیراتی لاگت میں 13 کروڑ کی خطیر رقم کی بچت کی جائے گی، جبکہ بچت کے بعد تعمیراتی لاگت 96 کروڑ روپے ہو جائے گی. انڈر پاس 4 ماہ میں تعمیر کیا جائے گا، جبکہ سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے MM عالم روڈ اور کیولری گراؤنڈ ٹریفک کو سہولت ملے گی. 2 رویا انڈر پاس 540 میٹر طویل اور دونوں طرف سے 2 لینز پر مشتمل ہوگا. بارشی پانی کے اخراج کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے. منصوبے کے لیے تقریباً 7 کنال اراضی ایکوائر کی جائے گی. کورونا سے بچاؤ کے اقدامات سٹی نیوز نیٹ ورک اپنے ملازمین کے تحفظ میں پیش ہے. جرمن ساختہ کٹس کی مدد سے جدید ترین طریقہ سے کووڈ-19 کی اسکریننگ کی جا رہی ہے. تفصیلات جانیں گے عفیفہ نصر اللہ سے. جی عفیفہ، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سٹی 42 ہمیشہ سے ہی ورکرز کا دوست رہا ہے اور ورکرز کی صحت کو سب سے اہم گردانا جاتا ہے. تو آج اسی حوالے سے سٹی 42 نے گیٹس فارما کا یہاں پر ان کے اشتراک کے ساتھ آج یہاں پر ایک کیمپ لگایا گیا ہے جہاں پر اسکریننگ کی جا رہی ہے کووڈ-19 کی. یہاں پر آن لائن سارا کام ہو رہا ہے. سب سے پہلے یہاں پر بیسیکلی جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں، وہ سب یہاں پر موجود ہیں. ان سب کی یہاں پر ہسٹری کلیکٹ کی جا رہی ہے. 24 نیوز، 42، روہی، تمام جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے سب چینلز کا، سٹی نیوز نیٹ ورک کے سب چینلز کے جہاں پر ورکرز ہیں سب کے سب یہاں پر آئے ہیں. پہلے آپ کو ہسٹری سیکشن دکھایا ہے اور اب یہ وہ والا سیکشن ہے جہاں پر ان کی سیمپلنگ لی جا رہی ہے. یہاں پر ٹیسٹ اسٹریپس رکھی گئی ہیں. یہ سب سے ریپڈ یہاں پر ان کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں. فوری ان کو ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں. 45 منٹ کے اندر اس کا رزلٹ دیا جا رہا ہے. اس رزلٹ کے بعد یہاں پر ایک تیسرا اور سیکشن بنایا گیا ہے جو کہ کاؤنسلنگ سیکشن ہے. اس سائٹ پر یہ جو سیکشن ہے یہاں پر ان کی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کو پازیٹیو نکل آتا ہے تو پھر اس کا وہاں پر اس کو بتایا جائے گا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو سائیکولوجیکلی اس کو دیکھا جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں فارما صاحب جو ہماری جن لوگوں نے یہاں پر کیمپ لگایا ہے گیٹس فارما کے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ یہ بتائیے گا کیا طریقہ کار ہے آپ کا، کیا یہ ہسٹری آپ لے رہے ہیں؟ بڑا اچھے طریقے سے آپ ان لوگوں کو جان رہے ہیں. جی السلام علیکم. میرا نام ریاض ملک ہے اور میں ایز اے ہیڈ آف سیلز گیٹس فارما میں اپنی جاب پرفارم کر رہا ہوں. دیکھیں یہ ایک پینڈیمک ہے جس میں پوری دنیا ہی جو ہے نا افیکٹ ہوئی ہے اور ڈیفینیٹلی جو ہے نا اگر فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو دیکھیں تو گیٹس بینگ اے نمبر 1 کمپنی اس انڈسٹری میں ہماری یہ رسپانسبلٹی تھی کہ ہم اپنی یہ جو کمیونٹی ہے اس میں اپنا رول پلے کریں. اور اسی کے تحت جو گیٹس فارما کے CSR ڈپارٹمنٹ نے نہ صرف جو ہی یہ پینڈیمک جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوئی ہے تو مور دین جو ہے نا وہ 100,000 پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ جو ہے نا وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے پرووائڈ کیے. اس کے علاوہ آج ہمارے کتنے ورکرز کا آپ ٹیسٹ لے گئے؟ آج آپ کے جو ہے نا وہ 200 ورکرز جو ہے نا ان کی ہم ریپڈ اسکریننگ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے جس میں کہ جو آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کو اسکرین کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ کون سے ایسے امپلائی ہیں جو کہ کووڈ-19 جو ہے نا وہ پازیٹیو ہیں. تو ہمارے اس وقت مور دین 25 کولیگز یہاں پہ جو ہے نا وہ موجود ہیں جو اس ریپڈ اسکریننگ ٹیسٹ کو جو ہے نا وہ پرفارم کر رہے ہیں. ایک جیسے آپ نے بتایا بھی ہے، دکھایا بھی ہے کہ انیشیلی یہ مجھے بتائیے گا کہ جب آپ یہ ہسٹری لے رہے ہیں، ہسٹری میں سارا کچھ آپ انفارمیشن لے رہے ہیں، کیا اس کو اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کاؤنسلنگ کے دوران؟
جی یہ جو ہسٹری لے رہے ہیں ہمیں اس میں دو چیزوں کی ایک تو ہیلپ ملے گی. پہلی تو یہ ہے کہ جب جو لوگ پازیٹیو آ جائیں گے ان کو ہم یہاں پہ کاؤنسلنگ کریں گے, ان کو بتائیں گے کہ ان کی عفیفہ بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.